Hello. So today in this program, we are going to meet Vartika Gupta, Kirti, and Milind Datar. I would like to give a little introduction of Vartika. Vartika is a consultant psychologist, and she is a founder of a social enterprise called Machli. She's also an art-based therapist. Kirti and Milind are entrepreneurs. They are the co-founders of company called Connector Foods, which is Maharashtra's largest chain of fresh sugarcane juice outlets. They have their outlets in corporate cafeterias of companies like Infosys, Wipro, Cognizant, etc. Due to lockdown, their business was closed, and so they decided to utilize this time to help people in this difficult situation and started the initiative called Donate Meal Pune. Welcome to this program. Thank you. The first question I would like to ask you is about this, the concept, like the initiative you started. Like, why did you come up with this? Like, what made you think of starting this initiative? Sure. So basically, as you rightly mentioned, that we are in the corporate cafeteria. So the moment the lockdown was announced, our business was closed because the cafeterias were closed. And at that time, we had some inventory left in our factory. So we were like not sure what to do about that. Initially, we thought this lockdown maybe for a day or two or few days. But Mm-hmm. then reality dawned upon us that no, this is going to take a longer period, unpredictably. Yeah. So we said, okay, rather than letting it rot and throw it away, we said let's put it to good use. Mm-hmm. So that's where we decided to donate it to the police personnel in the Hinjewadi and Wakad area where we work predominantly. Okay. So initially that started as a one-off activity, Mm-hmm. and we happened to put a post on Facebook, which got a tremendous response. We got a number of calls. Few Okay. very close friends called up and said, "Arey, you're doing this. We also want to do, so Oh, that's let's wonderful. do it." So then we started thinking, fine, if so many people are willing to do something like this, let's come together, join hands, and start something. So, Okay. in fact, even when we started, I mean, see, we are not an NGO or we are not, we didn't think we will, I mean, we have been doing some bit of social service here and there, but we never thought we would do it as a mainstream or full time for such a longer period of time. And Mm-hmm. of course, when this lockdown happened, as Milind rightly said, nobody knew how long this could be. We thought it's 1 week, then we got to know it's for 14 days. Mm-hmm. So when we started this, we thought कि हाँ ठीक है हमने किया फिर किसी friends ने approach किया तो उनके साथ हमने एक दो initiatives कुछ कर लेते हैं जितना funds अपने pull in कर सकते हैं friends से family से we Mm-hmm. thought कि हाँ चलो because when we interacted with police by then ऐसा हो गया था कि these migrants they had already started walking towards their villages Okay. and they were being stopped by the government wherever they were. I Mm-hmm. mean, those initial 14 days was a very strict lockdown, if you remember. Yeah, I do remember. So when these migrants were stopped wherever they are, which means they were en route, they were not in their homes. They were then quarantined or they were kept in some schools or such kind of places. And then suddenly in front of government, in front of police, there was a question that, okay, how do we manage about their food? Okay. So yeah, since we were interacting with police officials for our initial, initiatives one or two, then the requirements started coming from them that okay, we have let's say 60 people being quarantined in the school. Can you somehow arrange for food for them? So Okay. when this requirement came to us, we couldn't say no. Yeah. Yeah, I do understand that. Like when we see people starving, we cannot say no. Yeah, we couldn't just say no. And we said, okay, for the 60 people, we'll do something. And then we did for 1 day, and then 2 day, and then that had to be done for 14 days, which means, Mm-hmm. yeah, we required to raise funds because, of course, from our fund for so many people. And then it was not just those 60 people, then there's another set of laborers who are not able to go out and earn. They need something. So Mm-hmm. suddenly, the requirements started popping up. Maybe Vartika can tell that, initially when Vartika got engaged, a lot of control rooms had her number.
How did Vartika like meet you? How did this association happen? So that's an interesting story. So Vartika and I have worked on a very different project sometime, maybe 4 years back or something. We acted together in a play, and Vibha, you were also with us. That's how Yes, three of us I are was. connected. So there was this play called as 99 Women, in which all three of us had done our part in by acting, and we were in that play. So thereafter, Vartika and I, we were not very closely connected. Probably we were on Facebook or something. And Vartika probably saw our post on Facebook, and one day she calls me up and she says, "No, Kirti, I saw what you guys are doing. So I would also like to help. How can I help?" I said, Okay. "Okay, I don't know, but come and join and we'll figure out something, because as I said, Actually आपके मतलब आपका नाम भी मुझे वर्तिका से ही मिला, हाँ जी, बिल्कुल, yes. क्योंकि मैंने भी वर्तिका को ही फोन किया था पूछने के लिए कि how can I help? Absolutely, absolutely. So when he came, I said, "Look, I don't know," because see, the challenge was when someone approached us, कि how can we help? उस समय lockdown था, तो physical movement in the city was not possible. तो of course ऐसा नहीं कि हाँ मुझे volunteers चाहिए, मुझे volunteers भी किस लिए चाहिए? We had to work it out properly. So then when she approached me, I told her कि हाँ, we are predominantly working in Hinjewadi and Balewadi, these areas, because we stay here and our professional presence is in this area. So then I told her, you live in Bavdhan and Kothur, that region. तो आप एक काम कीजिए कि वहाँ के जो पुलिस ऑफिशियल्स वगैरह हैं, उनसे अगर आप थोड़ा कनेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो देखो, तो we can extend our support in those areas also. Okay. And then Vartika, you can share the part of your story now. हाँ, क्योंकि जब मैंने वर्तिका को फोन किया था तो वर्तिका ने बोला था कि मेरा नाम हर पुलिस स्टेशन में है। Exactly, exactly. तो वर्तिका प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो जब मैंने कीर्ति को फोन किया था तो कीर्ति ने मुझे बोला कि अभी सपोर्ट आना हमें शुरू हो गया है, पर ये सपोर्ट हमें जिन लोगों तक पहुंचाना है हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? वर्तिका, कैन यू बी अ लिटिल लाउडर? वी कैन नॉट हियर यू प्रॉपर्ली। अच्छा, इज इट बेटर नाउ? A bit more louder, if possible. Is it better now? Yes, now it's better. Huh? Yes. Okay. It's okay if that is seen. It's okay. हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जब मैंने कीर्ति को कॉल किया तो कीर्ति ने मुझे बताया कि उनको सपोर्ट आना शुरू हो गया, इस इनिशिएटिव को सपोर्ट आना शुरू हो गया है, और हमें जिन लोगों तक मदद पहुंचानी है, हमें पता है किन लोगों तक मदद पहुंचानी है, लेकिन उन तक पहुंचा कैसे जाए, आइडेंटिफाई कैसे करें उन ग्रुप्स को। तो इस बारे में बातचीत हुई थी। तो कीर्ति ने बोला कि आपके एरिया में जो पुलिस स्टेशन है आप वहां पे बात कर सकते हैं क्या? सो देन आई स्टार्टेड डिगिंग अप, आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट नंबर्स, फोन नंबर्स की कौन से पुलिस स्टेशन में मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ, बावधान में रहती हूँ तो आसपास और कौन से एरियाज हैं। फिर मैंने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया, मैंने बावधान पुलिस चौकी है वहां का फोन नंबर निकाला, अलंकार पुलिस चौकी का फोन नंबर निकाला जो करवे नगर में है, वारजे पुलिस चौकी का कांटेक्ट नंबर निकाला। सो ऐसे कई सारे और पुलिस स्टेशंस हैं या पुलिस चौकी है जिनका फोन नंबर निकाला, और हर जगह मैंने बात करी और मैंने उनको बताया कि हमारा ऐसा ऐसा इनिशिएटिव है, हमें ऐसा ऐसा सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए कि हम कैसे उन लेबर कैंप्स तक पहुंच सकते हैं, हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे उन तक खाना या राशन पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह से पहले दिन मैंने जब फोन किया सब जगह सभी ने मेरा नंबर मेरे नाम के साथ नोट डाउन करा और मैं क्या मदद कर सकती हूँ या मैं किस इनिशिएटिव के साथ जुड़ी हूँ और हम क्या मदद कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन उनको दी। तो वो जब उन्होंने नोट किया तो अगले दिन सुबह से मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई थी और वो कॉल्स का सिलसिला अब जाके रुका है। तो वो कॉल्स किसके कॉल्स आते थे? पुलिस स्टेशन से आते थे? ये कॉल्स मुझे जो भी आ रहे थे वो लेबर कैंप से आ रहे थे। तो लेबर कैंप से जब भी मुझे कोई कॉल करता था तो मैं उन्हें पूछती थी कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, तो वो बोलते थे कि हमने पुलिस में फोन किया था, अच्छा। हमने 100 नंबर पे फोन किया था, तो ऐसे करके उन्हें मेरा नंबर मिला।
ओके। और फिर उन्होंने अपने अपने रिक्वायरमेंट शेयर करने शुरू किए। मैं रिक्वायरमेंट नोट डाउन करती थी एंड देन आई यूज्ड टू शेयर इट विद द टीम, कीर्ति और मिलिंद को बताती थी। फिर उसके बाद कैसे इसके अराउंड हमें क्या अरेंजमेंट करना है, हाउ वी आर गोइंग टू वर्क अराउंड इट रादर। सो फिर कीर्ति और मिलिंद उसमें लग जाते थे। तो अच्छा, ऐसे हमारी शुरुआत हुई थी। तो क्या आप 3 ही लोग थे या और भी कोई वॉलंटियर्स थे आपके साथ? Yeah, so no, we have some more people also as a part of the core team who are working with us either at the planning level or the execution level. So we are a set of around 5-6 people. तो एक लॉयड्स दास करके हमारे दोस्त हैं, वो भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है। एक मंगेश काटे करके हैं, तो वो दोनों भी काफी अच्छी तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं। और फिर हमने क्या किया कि ग्राउंड लेवल के लिए कई सारे अलग अलग लोगों के साथ टाइप्स किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो लोग क्वारंटाइन थे, उनके पास घर नहीं था, किचन नहीं था, विच मींस उनको कुक्ड फूड देना था। तो अब 100 लोगों का 300 लोगों का खाना बनाना है, तो वो कैसे हो सकता है? तो फिर हमने मान लीजिए हिंजवाड़ी में एक केटरर के साथ टाई अप किया और उनसे कहा कि फंड्स हम प्रोवाइड करेंगे, आप खाना बनाइए और डिस्ट्रीब्यूट So he is also a fellow vendor like us who works in the corporate cafeterias, Prashant Anand. So unka kitchen has been used for the cooked meal distribution, cooking and distribution. लेकिन फिर उनका किचन हिंजीवाड़ी में है, तो वी रियलाइज कि ओके अभी वर्तिका तो बावधान से रिक्वायरमेंट लेके आ रही है ना, कोथरूड से लेकर आ रही है। अब हिंजीवाड़ी से बावधान तक खाना लेकर जाना इट वाज नॉट फीजिबल फॉर 2 रीजंस। एक तो लॉकडाउन में हम लोग इतना मूवमेंट नहीं करना चाह रहे थे, और उस पीक समर भी था, तो फूड को कुक करना, ट्रांसपोर्ट करना, डिलीवर करना, फिर तब तक वो खराब हो जाएगा, ये सब बहुत सारा कंसर्न था। तो वी थॉट ट्रांसपोर्टिंग द फूड इज नॉट अ गुड आइडिया। तो फिर हमने क्या किया कि जो रेस्टोरेंट्स है कई सारे, तो एक फेसबुक ग्रुप है पुणे ईट आउट्स करके, तो पुणे ईट आउट्स के जो फाउंडर है अनिरुद्ध पाटिल, हमने उनसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया और उनके थ्रू हमको काफी सारे रेस्टोरेंट्स वालों ने हमें अप्रोच किया एंड दे सेड कि हाँ, जैसे अभी बावधान में है तो चांदनी चौक में गार्डन कोर्ट करके रेस्टोरेंट है, we approached them, we got in touch with them and they said कि हाँ ठीक है, जो भी आपका कोथरूड साइड का रिक्वायरमेंट है या बावधान साइड का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए डेली 100-150 मील्स हम अपनी तरफ से आपको बनाकर दे सकते हैं। क्या बात। हाँ, तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह का था, इसकी वजह से देन लोकेशन वाज नॉट अ कंस्ट्रेंट फॉर अस। तो हमारे पास अगर विमान नगर से रिक्वायरमेंट आ रही है, तो हम लोग फिर विमान नगर में किसी रेस्टोरेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कई सारे रेस्टोरेंट्स ने उनकी तरफ से उनके फंड्स इस्तेमाल करके हमको खाना बनाकर दिया। कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बिजनेस हमारे पास नहीं है, तो देन वी पेड देम द मनी, बट एटलीस्ट उन्होंने फिर भी हमको फूड कुक करके, पैक करके, डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद की। तो ये दोनों ही तरीके से हम लोगों ने इसको किया। और इससे ये भी एक फायदा हो गया कि रेस्टोरेंट्स के का जो स्टाफ है उनको भी काम मिलता रहा, उनको भी एम्प्लॉयमेंट उनकी चलती रही। बिल्कुल। तो हमारे लिए इसीलिए हमने कई जगह पे ये प्रेफर किया कि राशन किट के बदले कुक्ड फूड दे, क्योंकि उसमें 2 थॉट्स था कि कुक्ड फूड में कैसा है कि उस रेस्टोरेंट का स्टाफ भी एटलीस्ट एम्प्लॉय हो रहा है, उनको भी खाना बन रहा है, तो उनको भी खाने मिल रहा है, वो सब हो रहा है। और दूसरा, राशन किट का फिर भी एक पॉसिबिलिटी होता है कि कोई उसका गैर इस्तेमाल करे, उसको वापस सेल करे वगैरह, बट फूड वही इंसान लेगा जिसको सही में जरूरत है। हाँ, वो ऐसे इकट्ठा करके रख नहीं सकता, यूज नहीं कर सकते। It is perishable. They have to finish it. They have to utilize it. राइट। तो कई जगहों पे फिर हम लोगों ने पर्पसली प्रेफर किया कि नहीं, मतलब राशन किट नहीं देंगे, भले ही कुक्ड फूड हमको रोज ले जाकर देना पड़ता था। इनफैक्ट वर्तिका, यू कैन शेयर कि वर्तिका वाज द वन जिसने पूरा समर भर कड़ी धूप में रोज दोपहर को 12 से 2 या व्हाटएवर शी यूज्ड टू गो एंड डिस्ट्रीब्यूट खिचड़ी एंड फूड टू एवरीबॉडी। वर्तिका, यू वुड वांट टू शेयर दैट? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं थी जो ऐसा कर रही थी, बहुत सारे लोग यही काम कर रहे थे, लोगों का पेट भरने की कोशिश कर रहे थे, लोगों तक खाना पहुंचा रहे थे। मैं भी अकेले नहीं जाती थी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड जाते थे और हमारा एक फ्रेंड है रोहन वेखंडे। रोहन वेखंडे, माय हस्बैंड योगेश जगम और मैं, हम तीनों साथ में जाया करते थे, क्योंकि मेरे लिए मुमकिन नहीं था, जाहिर है, कि अकेले जाके मैं ये सब मैनेज कर सकूं। तो जो सिचुएशन थी वो देख के बहुत टफ भी लगता था अ लॉट ऑफ टाइम्स कि ये हो क्या रहा है और ये कब खत्म होगा, ये ख्याल मन में आया करता था। एट द सेम टाइम जिस तरीके से हमें सपोर्ट मिल रहा था, कहने का मतलब ये है कि
आज हमने 150 लोगों का खाना दिया है जाके, गार्डन कोर्ट में बात हुई है, गार्डन कोर्ट से 150 लोगों का खाना मिला है, और आज रात होते होते अचानक से वो काउंट एकदम से बढ़ जाता था, वो 150 की बजाय वो 240 हो जाता था। और हाँ, तो हम लोग कभी इसकी वजह से डरे नहीं या घबराए नहीं कि अरे अब कैसे करेंगे, ये मैनेज कैसे होगा, क्योंकि जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो बहुत ही दिल से, बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट कर रहे थे। गार्डन कोर्ट के जो फाउंडर है उनके साथ जब भी मेरी बात होती थी तो उनको कल मुझे कितने मील्स चाहिए वो मैं उन्हें लेट नाइट बताती थी, ऐसा नहीं कि उन्हें पहले से बताना पड़ता होगा। एंड दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव इन दैट। तो रात को 11 बजे, पौने 11 बजे ऐसे मैं उन्हें कॉल या मैसेज करके बताती थी कि कल के लिए और 50 मील्स बढ़ गए हैं, तो क्या आप प्लीज वो भी जोड़ देंगे, और बिना कुछ सोचे वो हाँ कर देते थे। तो इस तरीके से हमें सपोर्ट मिलता रहा। और ये सिर्फ वहाँ की बात नहीं है, और भी जो रेस्टोरेंट्स जुड़े थे, जैसे करवे नगर में एक रेस्टोरेंट जुड़ा था हमारे साथ, गोवन फिश करी, या आपटे रोड से एक रेस्टोरेंट जुड़ा था हमारे साथ, पर्च। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि मील्स का काउंट कम हो जाता था फॉर सम रीजंस, या तो कोई और सपोर्ट मिल गया शायद वहां पे कैंप में, या राशन वहां पे पहुंचा दिया गया, कुछ ऐसा हुआ, या फॉर व्हाट एवर रीजंस कभी कभी काउंट कम भी हो जाता था, लेकिन जो हेल्प है या जो सपोर्ट हमें मिल रही थी उसमें कोई कमी नहीं आई कभी भी। तो करेक्ट, That's a great thing to hear. और इस वजह से मतलब लॉकडाउन होते हुए भी हम पूरे पुणे में, मतलब ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट नहीं रहा हमारे पास। जैसे विमान नगर में मरकेश एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने काफी दिन तक हमको ऑलमोस्ट आई थिंक 1 month और मोर देन दैट दे सपोर्टेड अस एवरी डे विद लाइक 100 मील्स पर डे काइंड ऑफ थिंग। तो इस बात पे एक पॉइंट सॉरी ऐड करना चाहूंगी। वो ऐसा, जैसा कीर्ति ने बोला कि हमें कहीं हम लोग हर जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उसका कारण ऐसा भी है। एक तो जब फोन कॉल्स आनी शुरू हुई थी तो सिर्फ एरिया वाइज नहीं कि मैंने अगर पुलिस कंट्रोल रूम में अपना नंबर छोड़ा है तो बागन के आसपास या हाईवे के आसपास जो लेबर कैंप्स है वहीं से कॉल्स आएंगे, ऐसा नहीं था। हमें कॉल्स आई है रावेत से, हमें कॉल्स आई है देहू रोड से, कड़ेगांव जो शायद 65 किलोमीटर्स दूर है, तो ऐसे ऐसे जगहों से आई है, कोंडवा से आई है। तो हर जगह हम लोग ना नहीं बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम उनसे थोड़ा समय मांग रहे थे कि हमें देखने दीजिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं वहाँ पे। वो सारी रिक्वायरमेंट्स में हम मिलिंद और कीर्ति के साथ शेयर करती थी, एंड दे यूज्ड टू मेक श्योर कि किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू, किसी ना किसी अपने दोस्त के थ्रू, मित्र के थ्रू, या जो भी कोई अपने अपने से एसोसिएटेड है उसके थ्रू वहां तक मदद पहुंच सके। सो वो एक बहुत ही सुंदर बात रही है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझसे। हमारी बनती कोशिश यही थी कि कोई भी भूखा ना सोए, जितना हो सके हम कोशिश करते हैं कि उस पर एक खाना होना चाहिए पक्का। आई नो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये अभी तक तो आपने सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस बताए, दिक्कतें क्या आई, प्रॉब्लम्स क्या आए, और मतलब कहाँ मुश्किलें आई आपको? एक्चुअली प्रॉब्लम तो सब, मतलब वैसे देखा जाए तो सभी प्रॉब्लम है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लॉकडाउन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सोशल डिस्टेंसिंग वो सब, स्पेशली सी वो जो वक्त था, इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर, जो इनिशियल 14 दिन थे या इनिशियल 1 month था, उस समय फियर ये सबसे बड़ी चीज थी। तो उस फियर को ओवरकम करके फील्ड पे जाकर जो काम कर ले, स्पेशली एज आई सेड कि मतलब वर्तिका तो उसमें एवरी डे स्लम्स में जा रही है वर्तिका टीम, हम लोग भी जैसे पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो एक बार मौत के फियर को ओवरकम कर लिया तो शायद फिर और कोई ज्यादा बड़ी और कोई भी उससे बड़ी कोई भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक नजरिया है, नजरिया चेंज करो, कोई मुसीबत थी नहीं हमारे सामने। देन द इंटेंट वाज देयर टू फीड पीपल। और वर्तिका, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे तो वहां पे आपको कभी ऐसा हुआ कि आप चले गए और सब भीड़ इकट्ठा हो गई, एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्नैच थिंग्स फ्रॉम यू, ऐसा कभी हुआ या आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा वहां पे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका कारण एक ये भी है कि जब भी किसी लेबर कैंप से कॉल आता था तो जो भी व्यक्ति उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है या जो उनकी तरफ से बात कर रहा है, मैं हमेशा उनको बोलती थी कि आप एक लिस्ट तैयार करिए, ठीक है।
आप एक लिस्ट तैयार करिए जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का नाम रहेगा, और या अगर मान लीजिए परिवार का एक ही सदस्य आता है तो उसके साथ साथ ये भी लिखिए कि कितने सदस्य हैं उस परिवार में। 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो हम उतने लोगों का खाना उस हिसाब से लेकर के आएंगे। और वहां पहुंचने से पहले उनको हमेशा बोल देते थे कि आप लोग लाइन लगा के रखिएगा और दूर दूर खड़े रहिएगा। फिर वहां पहुंचने के बाद हम लोग पहले थोड़ा सा टाइम इसी में बिताते थे कि ये देखने में कि हाँ सब ठीक से खड़े, दूर दूर खड़े, मास्क लगाया है सबने कि नहीं लगाया है। फिर उसके बाद खाना बांटना शुरू करते थे। हाँ, चैलेंजेस हमें कहाँ आए थे मैं बताती हूँ आपको, कि जब भी हम राशन बांटने के लिए जाते थे और कहीं किसी बस्ती के पास गए हैं, तो अभी किसी बस्ती से रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां हैं और बहुत हजारों लोग हैं वहां पे, तो मुमकिन नहीं था कि एक साथ सबको इस तरह से मदद कर सके। और भी लोग थे जो उन तक मदद पहुंचा रहे थे, पर जिनका भी कॉल हमारे पास आया, हमें उनकी मदद कैसे करनी है। तो अभी पता है कि वो एक पर्टिकुलर बस्ती से है, तो उनको एक जगह बता दिया कि आप थोड़ा सा चल के इधर आ जाइए इस पॉइंट तक, वहां पे इकट्ठे होकर के लाइन लगा करके फिर हम राशन बांटेंगे। तो अब हम, अगर हमने 20 परिवारों को बुलाया है फॉर एग्जाम्पल, तो हम 20 लोगों के को ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनको आता हुआ और लोग देखते थे, तो और लोग भी इकट्ठे हो जाते थे। ऐसा हमने जरूर फेस किया है जब भी हम स्लम्स में कहीं पे भी बांटने के लिए गए हैं। तो वो हमने मैनेज कैसे किया, एक तो अगर कुछ नए लोग आते थे तो हम उनसे बातचीत करते थे, उनका रिक्वायरमेंट लेते थे, उनको मदद मिल रही है नहीं मिल रही है या क्यों नहीं मिल रही है वो भी समझने की कोशिश करते थे, थोड़ा टाइम उसमें जाता था। और अगर उन्हें कहीं से मदद जेन्युइनली नहीं मिल रही है तो फिर हम उन तक मदद पहुंचाते थे उनका रिक्वायरमेंट लिख करके। एक वो था। दूसरा ये था कि उस एरिया के जो भी पुलिस स्टेशन है या पुलिस चौकी है जिनके साथ हम जुड़े हुए थे, हम वहां से भी मदद लेते थे। इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ जो मुझे बहुत ही मेरे दिल के करीब है। उसका कारण ऐसा है कि मैं ग्रास रूट्स पे काम करती हूँ और बच्चों के साथ काम करती हूँ। तो ऐसे ही एक बस्ती में कोरेगांव पार्क में हम लोग राशन बांटने के लिए गए थे, और पुलिस का बहुत बड़ा सपोर्ट था, उनके बिना हम वो नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन था, बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो हमने पुलिस के साथ बात करी, थोड़ा सा मन में एक हिचकिचाहट थी कि वो मैनेज कैसे होगा वहाँ पे क्राउड और सारे प्रिकॉशंस ले करके हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो जब मेरी वहाँ पे कंसर्न पर्सन से बातचीत हुई तो उन्होंने बोला आप बिल्कुल चिंता मत करिए, यहाँ पे मंडल के लोग हैं, बच्चे हैं, वो लोग सब मदद करेंगे। बच्चे यानी यूथ की बात कर रहे थे वो। तो हम लोग वहाँ पहुंचे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमने वहाँ का पूरा एक एक राउंड लगाया, देखा पूरा एरिया कैसा है, किधर है, हम किधर बांटने जा रहे हैं, वो सब किया। हम लोग एक जगह इकट्ठे हुए और हमें बोला गया वेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो यूथ था वो सारा अरेंजमेंट कर रहा था। दे इंश्योर्ड कि 250-300 लोग करीब वहाँ पे लाइन में लगने के लिए आए थे, राशन लेने के लिए आए थे। और वो जो यूथ था उसने इतने अच्छे ढंग से पूरा क्राउड मैनेज किया था। और मुझे लगता है कम से कम 20-25 लड़के तो होंगे, यंग लड़के, जो ये सब मैनेज कर रहे थे। So, the beautiful thing is, seeing those youngsters coming together for their people, for their community at this point of time, जहाँ पे सब कुछ इतना बिखरा हुआ सा दिख रहा है, तो सबको उन्होंने संभाला, पूरा क्राउड उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया। वहां पे भी कोई ऐसा नहीं था कि बीच में आ रहा हो या कुछ गड़बड़ कर रहा हो। प्रिकॉशंस लेते हुए ये सब किया गया। सबके हाथ में सैनिटाइजर उन्होंने दिया, वो लगा के फिर उसके बाद वो राशन किट लेकर के जा रहे थे। इट वाज़न्ट इजी। अगर हम लोग खुद से सोचते कि जाके बांट दें वहां पे, तो नहीं कर पाते अगर उन यंगस्टर्स का सपोर्ट हमें नहीं होता तो। ये सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफी बार हम यही सुनते हैं कि आजकल का यूथ कुछ कर नहीं रहा है, कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है, बस बिगड़ा हुआ है। जब ऐसा ये चीजें सुनने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है कि जब जहाँ जरूरत है वहाँ यूथ काम भी करता है। बिल्कुल। और मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि वर्तिका क्योंकि ऑलरेडी ग्रास रूट लेवल पर काम करती है, तो उनका ये जो एक्सपीरियंस है ये हमने इस समय देखा कि बहुत हमारे लिए भी फायदेमंद रहा। बिकॉज वर्तिका जब जाती थी कुछ फूड देने या जो भी डिस्ट्रीब्यूट करने, तो वो सिर्फ फूड नहीं, उसके साथ उनको एजुकेशन भी दे रही थी।
मुझे याद है कई बार मेरा वर्तिका से इंटरेक्ट हुआ था कि वर्तिका ने बिल्कुल उन लोगों को बोल दिया था कि अगर आप लोग मेरे बताए हुए डायरेक्शन से नहीं करोगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करोगे, तो मैं कल से तुमको खाना नहीं दूंगी, या जो फॉलो नहीं करेगा। आई रिमेम्बर वर्तिका यू हैड मेंशन वंस कि शायद किसी ने स्पिट किया था एंड शी क्लियरली सेड कि मैं इस बंदे को खाना नहीं दूंगी करके। So, very important role she played by even educating people कि बस ऐसा नहीं है कि हाँ चलो खाना दे दिया, जिम्मेदारी खत्म हो गया। It was a very holistic approach that this entire initiative got because of having Vartika and such kind of people on the team, and that is something which we feel really happy about. Great. So आपके beneficiaries basically migrant workers, police force और ऐसे अलग-अलग बस्तियों के लोग थे. Not only restricted to that. So basically, as I told you, the situation was very dynamic. Every day was something new was unfolding. So हमको एक दिन Central Railway से phone आया that they are making those isolation wards near Wagholi, sorry, Kharadi. तो वहाँ पे उनका call आया, तो they were in need of masks. So morning they called us. Afternoon we went and donated masks to them. Even from the army camp, we got one requirement. So we were ready for any kind of requirement. So basically, we got connected with the Bharosa cell also. So Bharosa cell is the cell where even senior citizens can call up and ask for any kind of help. Okay. So individual help भी हमने काफी करी है. We got calls from some senior citizens. हमने रातों रात उनको दवाइयाँ पहुँचाई है. So the help was not restricted only to food. Okay. Any requirement, we were there to fulfill whatever was in our capacity. Wonderful. तो अभी ये सब काम मतलब कितना चल रहा है? लॉकडाउन थोड़ा सा अभी उठ गया है, थोड़ा like movement is allowed. तो अभी ये सारा काम कितना चल रहा है और कितनी जरूरत है अभी? See, actually, yes, you asked a very right question कि जब अप्रैल एंड मई those 2 months में काफी strict circumstances थे और बहुत ज्यादा लोग थे जिनको मदद की जरूरत थी. अब yes, काफी सारे migrants जो है वो अपने अपने गांव पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हो तो पुणे में आज भी बहुत सारे कंटेनमेंट जोन्स हैं. कंटेनमेंट जोन का मतलब ऐसा है कि उस जोन में जो भी रह रहा है they are still not allowed to go out and work. Correct. Which they are still not able to earn their own livelihood. Right. जैसे कई सारे maids है, अभी maids allow हो चुकी है societies में, लेकिन जो ladies containment zone में रहते हैं, they are still not able to go back to their work. Right. ऑटो रिक्शास अभी तक पूरी तरह से नहीं चालू हुए, तो ऑटो रिक्शास जिनके हैं वो लोग नहीं कर पा रहे हैं. तो इस वजह से हमें प्रोबेबली हमारे कैटेगरी ऑफ लोगों को लग रहा है कि अब लॉकडाउन ईज हो गया और अब ज्यादा जरूरत नहीं है किसी चीज की. बट स्लम्स में अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है और ये तब तक रहेगी जब तक ये कंटेनमेंट जोन्स को ओपन नहीं हो जाता. See, I mean, they are the people who are saying we want to work. अब वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें वहां जाकर के फ्री में फूड दे, ये करे. Yeah, I know. Because I'm also volunteering with one group, and I've heard this many times from people that like we would like to go and work, but we are not allowed to. Yeah, and we really feel bad. We feel like beggars, but which we are not. Yeah, so इस वजह से हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हर किसी का, नॉट जस्ट हमारा बट इवन जो डोनर्स है. तो पहले जिस तरह से वो लोग डोनेशंस दे रहे थे या कंट्रीब्यूशंस कर रहे थे, सब काफी अच्छी से दिल खोल कर हो रहा था. बट जून ऑनवर्ड लाइक कहीं पे वो माइंडसेट हो गया कि हाँ अब सब ओके है, अब क्या जरूरत है डोनेट करने की या क्या जरूरत है किसी को राशन देने की. जब तक हम उनको काम करने के लिए अलाउ नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट, तब तक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको एटलीस्ट 2 वक्त का खाना अवेल करवा सके. तो आपने क्या सोचा है, आप ये कब तक करेंगे जब तक जरूरत है? बनती कोशिश तो है, जब तक एक भी केस नहीं है तब तक हम कोशिश करेंगे. We will definitely want to do it until the complete lockdown is lifted. मतलब as you ask, हम लोग भी are not an NGO, so ये हमारा first से full time profession नहीं है, and now the business has opened up, तो of course हमारा काम चालू हो गया है, सब हो गया है. लेकिन Milind rightly said कि जब तक containment zones हैं, जब तक requirement है और need है, तब तक हम लोग इस चीज को करते रहने की कोशिश पूरी करेंगे अपनी तरफ से. लेकिन जैसे आपने कहा कि शुरुआत में डोनेशंस बहुत आ रहे थे,
जो भी लोग काम कर रहे थे सबको डोनेशंस फटाफट से मिल रहे थे, वॉलंटियर्स भी काफी एंथुजियास्टिक थे। लेकिन जैसे जैसे दिन चलते गए तो अभी धीरे धीरे वो एंथुजियाज्म भी कम होता जा रहा है और डोनेशंस भी कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपने क्या सोचा है कि कैसे आप ये आगे चलेगा, आगे ले जाए? बेसिकली हम अपनी तरफ से अभी भी कोशिश कर रहे हैं। आई मीन मैं अभी भी अगर आप मुझे पूछोगे तो एक नॉर्मल मंथ अगर हम देखते हैं अपना कोई भी मार्च के पहले, लेट्स से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो एक नॉर्मल मंथ में हम लोग हर फैमिली, एक नॉर्मल फैमिली का महीने का कम से कम 5,000 का खर्चा हम लोग एंटरटेनमेंट पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में खाना हो हर वीकेंड पे, या मूवी हो महीने में एक बार 2 बार, so at least 5,000 rupees is something which we would easily spend on either eating out or going to movies, जो अभी भी हमारे लिए शुरू नहीं हुआ है। हम लोग आज रेस्टोरेंट्स में नहीं खा पा रहे हैं और हम लोग अभी भी मूवीज नहीं जा रहे हैं। हाँ. तो हमारा ये सोचना है कि एटलीस्ट वो जो किटी है, वो जो बजट है, एटलीस्ट वो अगर लोग कंट्रीब्यूट कर सके, यू नो, तो दैट वे अभी भी जिनको जरूरत है उनका वो सस्टेन हो सकता है। और हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो चुका है या यू नो एवरीथिंग इज नॉर्मल, अभी तक वैसा हुआ नहीं, बिकॉज बिजनेसेस ओपन नहीं हुए अभी तक सारे। हाँ. And there is one more. ये भी एक वजह है डोनेशंस कम होने की, क्योंकि काफी लोगों का अपना काम बंद है, अपनी कमाई बंद है, इसलिए भी लोगों को सोचना पड़ रहा है कि अब डोनेशंस कैसे दे, कहाँ से। हाँ, बट सी एक बात समझना है कि जो सैलरीड क्लास है, स्पेशली जॉब फोर्स है, मैक्सिमम लोगों को सैलरी कंटिन्यू हो रही है, बट जितना एक्सपेंडिचर अपना अदरवाइज रेगुलरली होता है उतना एक्सपेंडिचर अभी नहीं हो रहा। हाँ, ये तो बात सही है। वही है कि सी वी आर नॉट सेइंग कि आप भूखे रहो, आपका बिजनेस नहीं है तब आप नीड करो, बट इतना भी सरप्लस जो भी हो, महीने का 2,000, महीने का 5,000, जो भी आपको लगता है कि आप आमतौर पर खर्चते हो, सिर्फ फ्यूल, आज हमारा फ्यूल कंजम्पशन कितना कम हो गया है, राइट, एज कंपेयर टू नॉर्मल, हम लोग का फ्यूल एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 0 हो गया है अभी। सो एटलीस्ट वो जो एक सरप्लस हमारे पास है, उसको अगर हम किसी को सपोर्ट करने के लिए ऐसे वक्त पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यू नो ये वक्त और भी इजीली निकल जाएगा। मुझे लगता है यही अपील हम लोग अपने व्यूअर्स को भी कर सकते हैं कि जो भी आप इस तरह से खर्चा करते हैं, अगर हो सके तो इस काम में डोनेट करें। किसी भी ग्रुप को, किसी भी एनजीओ को करें, जरूरी नहीं कि आपके लिए ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये हेल्प आप वो लोग कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सी कैसा है कि गवर्नमेंट भी कर रही है, बट गवर्नमेंट हर किसी तक नहीं पहुंच पाती है। तो कई सारे एनजीओस और हमारे तरह के ग्रुप्स है जो ग्राउंड लेवल पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो सी इवन फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेड है, अगर आप मेड का भी ऐसा है कि कई लोगों ने मार्च में सैलरी दे दिया, अप्रैल में दे दिया, बट ऑनवर्ड्स नहीं दे रहे हैं। सो बट हमको ये सोचना है कि अगर वो कंटेनमेंट जोन में रह रही है और अगर वो काम पे नहीं जा पा रही है, प्लीज अपनी मेड को सैलरी दे दो, कम से कम एक घर चल जाए। या ट्रू, दैट इज हाउ इट इज। तो हमारे पास वक्त की कमी है, हम बहुत ज्यादा देर तक तो बात नहीं कर सकते। Last question, what would you like to appeal to our viewers? Sure. So as Kirti said, definitely all of us can join hands and do their bit, whatever it is. So we will not want to define any amount or whatever, and especially with the monsoons setting in, आशंका है कि शायद ये numbers और भी ज़्यादा बढ़ेंगे. So I would humbly request and appeal to all the citizens कि आप जितना हो सके आप कोशिश करिए और कहीं पे भी दीजिए, not only donate Meal Pune, or you can do it on your individual basis also, but do something, do your bit so that nobody goes, hungry. Yeah, well said. Artika, you want to add something? बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि मदद करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़े, कहीं दूर जाना पड़े किसी की मदद करने के लिए। हम अपने आसपास भी देखेंगे तो हमें बहुत लोग ऐसे नजर आएंगे जिन तक हम मदद पहुंचा सकते हैं या जिनके चेहरे पे एक स्माइल ला सकते हैं। सो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, आई थिंक हम सभी अपना अपना बिट अगर करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा शायद एज अ होल, ये मुझे लग रहा है।
तो हम लोगों ने भी अपना अपना बिट किया है. अगर मैं इस इनिशिएटिव से जुड़ी थी तो जो मेरा बिट है, जो मैं कर सकती थी, मैंने वो करने की कोशिश करी. तो आई थिंक हम सभी थोड़ा थोड़ा कुछ कर सकते हैं. हाँ. यही सबसे कहना चाहूंगी. And one last note I will want to add, Vibha, is see, no one is safe until everyone is safe. Absolutely. That's the biggest learning from COVID-19. Yes. That if you want to be fine, you should think of everybody around you. हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अब कोविड का कम हो गया है, स्लम्स नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब तक वो स्लम्स में रहे, कहीं भी रहे, पूरा सिटी तब तक नहीं आगे बढ़ पाएगा, बिजनेसेस तब तक ओपन अप नहीं हो पाएंगे. सही बात है. जब तो जरूरत नहीं है तो बाहर ना निकले. हाँ, ये भी है. और अगर अपने को खुद को सेफ रखना है तो सबकी सोचना चाहिए. यही मुझे लगता है इस इंटरव्यू का मैसेज है. Thank you so much for the time you gave for the interview. Thank you. Thank you. And all the best for your journey forward. Thank you. Thank you, Vibha. Thank you, Vibha.